Good morning, students. Students, in our today's video lecture, we will continue our topic, which we are left behind, atomic structure. In that, we have derived the formula for finding the wavelength of the electromagnetic radiation when the electron comes from excited state to lower excited state, upper excited state to lower excited state. When the atom comes from, and for that we have seen that formula was 1 by lambda equal to z square r 1 by n1 square minus 1 by n2 का whole square. So this was the formula, and for hydrogen we can place z equal to 1, and from this formula we can also find the unit of this Ripple constant, which was meter inverse. In our today's video lecture, students, we would talk about energy level diagram. We would talk about energy level diagram. So let's start with concept energy level diagram for atoms. Okay, we are not talking about energy level diagram for solids, because this topic is different. When we talk about semiconductor devices, there we will talk about energy level diagram for solids. As we know that solid is made up of different large number of atoms. Here basically we are started with atoms. So Frank and Hertz, you have Frank and Hertz are two scientists which have who have built an experiment, and in which इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, they have taken a tube in which a gas is filled, basically gaseous form, in gaseous form mercury is filled here. So they have taken mercury in gaseous form, and they have sent electrons beam from one end, and observed electron beam which are coming out from the other end. This is the first end, and this is the last end. So they have entered the accelerated electron beams from one end, and observed collected the electron beam from the other end, last end. What they have observed, firstly they have sent electrons which possess energy from 0 to 4.8 electron volt. 0 to 4.8 electron volt. This value is not very important here. The concept was very important. The concept is very important here. What they have concluded, they have sent electrons which possess the energy from 0 to 4.8 electron volt, and when they collected the electrons at the other end, what they have observed? They have observed that electrons which are being collected at the other end doesn't lose energy, doesn't lose energy. मतलब इन्होंने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंटर्ड किए गए और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्होंने कलेक्ट किए गए, उनकी एनर्जी में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं मिला. इट मींस electrons are retaining their energy. Whatever the energy is being provided here is remain at the other end after being collided. यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, गैसियस एटम है. यहाँ पर क्या है, गैस के एटम्स यहाँ पर हैं. तो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो उनका कोलिजन होगा गैसियस एटम से. इसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहाँ पर आपकी क्या हुई, मेंटेन रही. अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उन्होंने देखा 0 to 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर रहती है, मतलब 4.8 से
एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाती है सेंड किए और वहां पर तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा जो इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंचे उनमें से कुछ की एनर्जी क्या हो गई, जीरो, कुछ की एनर्जी जीरो हो गई। इट मींस यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट थे उन्होंने उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एग्जैक्टली क्या कर लिया उन्होंने, एब्सॉर्ब कर लिया। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जिनकी एनर्जी में कोई भी किसी तरीके का भी लॉस नहीं हुआ, बट उनके जो नंबर्स थे वो कम थे कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन व्हिच हुज एनर्जी बिकम्स जीरो। तो जिन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी यहाँ पर जीरो थी उनके नंबर्स ज्यादा थे कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन हुज एनर्जी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो एटम्स थे दे आर टेकिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ओनली। मतलब अगर एनर्जी 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली है तब तो वो एटम आपकी एनर्जी को क्या कर रहे थे, एब्सॉर्ब कर रहे थे। बट अगर एनर्जी 4.8 से कम है तो कोई भी एटम आपका एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं कर रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, थर्ड केस में फिर इन्होंने 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर और आपका 6.67 अप्रोक्सीमेटली इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बीच। अब इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कराए उनकी एनर्जी 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर और 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या थी, लेस थी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा, इस जगह पर यहाँ पर जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट किया तो इन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, उनकी संख्या, उनके नंबर बहुत ही कम थे। कुछ के इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी, सपोज यहाँ पर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है इसको हमने सिंबल से डिनोट कर दिया ई। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनकी एनर्जी थी ई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि जो ई डैश था, ई डैश पहले तो कुछ के लिए ई के बराबर था, पहला केस ई डैश इक्वल टू ई। ठीक, कोई भी चेंज नहीं हुआ। सेकंड इन्होंने क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनकी एनर्जी में क्या हो गया कि क्या डिफिशियंसी आ गई, कमी आ गई, डिक्रीज हो गई थी। और कितना डिक्रीज हुई थी, इस क्वांटिटी के बराबर ई जो था ई माइनस 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, E माइनस 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें जो डिफरेंस था वो सिर्फ किसके इक्वल आया था, E माइनस 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीजें इन्होंने यहाँ पर क्या करी, ऑब्जर्व करी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को उनकी एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं रहा, वो बिल्कुल वैसे ही निकल गए। और कुछ इलेक्ट्रॉन जो आपके थे उनकी एनर्जी में सिर्फ कितना डिफरेंस हुआ, 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यानी एटम में अभी भी कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी, ओनली 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को ही क्या किया, एब्सॉर्ब किया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी एग्जैक्टली 6.67 इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने क्या किया, एंटर कराया। अब जैसे इन्होंने इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया तो इन्होंने क्या किया, पहला केस तो वही था, ई डैश आपका ई के ऊपर था, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम थे जिनकी एनर्जी क्या हुई थी, एब्सॉर्ब बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो ये पहला केस था। सेकेंडली इन्होंने क्या देखा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे ई डैश जो था जिनकी एनर्जी कितनी एब्सॉर्ब हो गई, 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कुछ एटम्स जो थे उन्होंने सिर्फ 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की क्या करी, एब्सॉर्ब करी इलेक्ट्रॉन से। और कुछ आपके यहाँ पर थर्ड केस भी था, थर्ड केस में देखा इन्होंने कि जो ई डैश था वो आपका क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स थे यहाँ पर, कुछ ऐसे एटम्स थे, ज्यादातर एटम्स आपके ऐसे थे जिन्होंने पूरी की पूरी 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इतनी सारी चीजें देखी तो इसका मतलब ये हुआ उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो आपके एटम हो रहे हैं वो एक डेफिनेट एनर्जी को ही एब्सॉर्ब कर रहे हैं, वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही क्या कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं। पहले वो किस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे थे, सिर्फ 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बीच में किसी भी एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं किया। क्यों, क्योंकि जब आपने 4.8 से 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को इन्होंने फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने सप्लाई किया इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तब इन्होंने बीच में जैसे 5 वैल्यू है तो उसको सिर्फ 4.8 को ही एब्सॉर्ब किया, बाकी किसी एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं किया। नेक्स्ट जो एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई थी वो थी 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है जो आपके एटम्स हैं इनका जो एनर्जी होती है, एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक डिफरेंट सेट के लिए, डेफिनेट सेट के लिए है, इनके बीच में कोई भी एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और इस डायग्राम को
बाद जो अपनी इंटरनल एनर्जी थी वही थी, एक्सटर्नली बाहर से उसको कोई एनर्जी नहीं मिली है, तो ये हमने दिखा दिया आपको कि उसकी है नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। हमने इसको रे से दिखा दिया, हमने लाइन दिखा दिया, जैसे लिखते ग्राउंड स्टेट ये होगी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि वो अपर लेवल का 4.8 इलेक्ट्रॉन। Welcome to my online chemistry classes for class 12. Before starting this, I want to tell you something. Student, this time is very crucial, very difficult time for us. So protect yourself and your family also. But remember, student, time is so priceless, so precious. So don't waste it. Pay attention to your online classes, and this is the time you can improve your other skills. So let's start this chapter. Student, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं extraction of element, which is also known as metallurgy. What is the metallurgy? Metallurgy is the process. It is combination of process which are used for the extraction of elements from their natural sources. Metals are generally exist in nature either in their free state or in their combined state. Free state से हमें कोई मतलब नहीं है because they are already free. उसको हम क्या extract करेंगे? But in their combined state they are exist as a minerals and ores. Minerals से हम extraction नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ extract किससे कर पाएंगे अपने metals को? ore से. So ore को हम लोगों ने पहचान लिया कि इस ore से हमको क्या करना है? एलिमेंट को extract करना है. But डिफिकल्टी कहाँ पे आती है? सम unless unwanted substances are stuck with that ore. For example, sand हो गया, stone हो गया, other lighter impurities जो हो गई वो ore के साथ स्टिक रहती हैं. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? to remove these type of impurities from ore. और इन impurities को हम कहते हैं gangue particles. तो फर्स्ट स्टेप में हमारा होता है removal of gangue particles from ore. And this process, this step is known as concentration of ore. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था what is the meaning of concentration of ore. इसमें हम क्या करते हैं and कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोग अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कार्बोनेट ore हुआ then we select the gravity separation method. अगर सल्फाइड ore हुआ then we choose the flotation method. अगर हमारे पास ऐसा ore हुआ या फिर one of them either ore particles or gangue particles having magnetic properties, then we choose electromagnetic separation. So और लास्ट में एक हम लोग ने और प्रोसेस पढ़ा था लीचिंग प्रोसेस. वो किस में यूज होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ Al from their ore, that is alumina. एल्यूमिना ओर में से जब हम ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तब लीचिंग प्रोसेस यूज होता है, वो उसका कंसंट्रेशन प्रोसेस होता है. तो फर्स्ट स्टेप हम लोग ने पढ़ लिया, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर. आज की वीडियो में हम लोग सेकंड स्टेप पे मूव कर रहे हैं, दैट इज द स्टेप 2, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट या फिर मेटल. हम इस चैप्टर में मेटल को ही एक्सट्रैक्ट करेंगे. आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर. जो फर्स्ट स्टेप में हमारा जो भी हम गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करके जो और हमको मिलता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप से हमको गेन हो रहा है, मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड ओर. अब इस कंसंट्रेटेड ओर में से ओर एलिमेंट को बाहर निकालना है. ओके, और इस सेकेंड प्रोसेस में हम यही करेंगे. आइसोलेशन मींस मतलब एक्सट्रैक्ट. आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी लिख सकते हो. एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर. कंसंट्रेटेड ओर इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट स्टेप. ओके, अब इस स्टेप में क्या करते हैं? सपोज हमारे पास कोई और पार्टिकल है, कोई और है, उसमें से हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले मेटल को हम उस और को हम उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अगर हमारे पास वो और पहले से ही ऑक्साइड फॉर्म में हो देन इट इज वेरी सिंपल, उसको कोई कुछ नहीं करेंगे. अगर हमारे पास नहीं है, सपोज हमारे पास और अपने हाइड्रोक्साइड फॉर्म में है, अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में है, अपने कार्बोनेट फॉर्म में है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि उस और को हम कन्वर्ट करेंगे उसके ऑक्साइड फॉर्म में. क्यों ऐसा करेंगे? बिकॉज ऑक्साइड फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो इट इज वेरी इजी टू रिडक्ट द ऑक्सीजन बाय द रिडक्शन प्रोसेस. रिडक्शन प्रोसेस को इससे हम उस ऑक्सीजन को बाहर कर देंगे, हम इसका रिडक्शन करा देंगे. इट इज गोइंग टू बी रिडक्शन एंड वो यहाँ से बाहर हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा? मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है. सेकेंड स्टेप का नाम क्या है?
आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। इसको हमने टू टाइप में डिवाइड किया है। अगर हमारे पास ओर पहले से ही एग्जिस्ट है इन देयर ऑक्साइड फॉर्म, सो इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, एंड रिडक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग क्या है? ओके, अगर हमारे पास पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में, तो उसका हम सीधे क्या करा देंगे? रिडक्शन करा देंगे। और रिडक्शन कराने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में कि अगर हमारे पास ये ऑक्साइड ओर में ना होकर, मे बी ये अपने सल्फाइड ओर में हो, अपने कार्बोनेट ओर में हो, अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, अपने हाइड्रोक्साइड फॉर्म में हो, तो सबसे पहला काम क्या है? कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। इस कंसंट्रेटेड ओर को फर्स्टली हम क्या करेंगे? अपने इसके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देंगे, अगर ये अपने ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है। और कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला स्टेप कहलाता है कैल्सिनेशन और अनदर स्टेप है रोस्टिंग प्रोसेस। इफ वी हैव hydrated ore, hydroxide ore and carbonate ore, then we select the calcination process, and when we have sulfide ore, then we choose the roasting process. ओके, सो अब हमें एक सिलेक्ट करके क्या करना है हमको? पहले हमारे सेकंड फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप क्या था? रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर। गैंग को अलग कर दिया। अब उस गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के काफी सारे स्टेप्स थे। क्या था? एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड एंड लीचिंग प्रोसेस। फिर हम आ गए सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। अब इसमें क्या करना है? कंसंट्रेटेड ओर हमको मिल गया, अगर वो पहले से ही ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट है, देन इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड एंड मेटल विल बी एक्सट्रैक्टेड। मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। कार्बन को in which carbon act coal में क्या होता है? कार्बन it act as a reducing agent। some elements जो होते हैं वो कार्बन उनको रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम एयर को यूज करते हैं। ओके, सो ये स्मेल्टिंग प्रोसेस हो गया। इसमें और चीजें भी हैं, प्लस वगैरह भी ऐड करते हैं, वो आएंगे तब डिस्कस करेंगे। अब अगर हमारे पास सपोज वो ऑक्साइड ओर में नहीं है, वो किसी और फॉर्म में है, वो अपने कार्बोनेट फॉर्म में है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में है, देन वी चूज टू प्रोसेसेस। नंबर वन इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। So now we move to calcination process. What is calcination? Calcination is the process in which ore is heated. क्या है हमारे पास? अभी ore है। कौन सा ore है? concentrated ore है, जो कि हमको फर्स्ट स्टेप से ऑब्टेन हुआ है। concentrated ore is going to be heated below its melting point। उसके फ्यूजन टेम्परेचर से हमको नीचे ही उसको रखना है, उसको वोलेटाइल नहीं बना देना, नहीं तो वोलेटाइल हो जाएगा, फिर हम एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे? So in calcination process, ore is going to be heated in the absence of air. It is very important. It is the basic difference in between the calcination and roasting. यहाँ पे हम एयर की absence लेते हैं, यहाँ पे हम एयर की प्रेजेंस लेते हैं। दोनों रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही ये प्रोसेस अगर होते हैं, दोनों इसी में हम लोग डन कराते हैं। कैल्सिनेशन में ore is going to be heated in the absence of air and below its fusion temperature, and roasting is the process in which ore is going to be heated below its fusion time in the presence of air. So this is the basic difference in between the calcination and roasting process. अब कैल्सिनेशन में क्या होता है कि ओर जो है आपका हमने हीटिंग करने के लिए लगा दिया। ओके, किसमें हमने ये प्रोसेस होने दिया? रिवर्बरेटरी फर्नेस में हुआ, और एयर को हमने इसमें पास नहीं करवाया। ये जो पूरा प्रोसेस कैल्सिनेशन का होता है, इसमें एयर का एब्सेंस होता है। तो क्या है? अगर हमारा कोई हाइड्रेटेड ओर है, फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड ओर, इफ वी हैव hydrated ore, it means Al2O3 dot 2 molecule of water। ये आपका हाइड्रेटेड ओर है। So water gets vaporized and hydrated ore से वाटर जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये बॉक्साइड ओर हमने लिया, इसका फॉर्मूला है Al2O3 dot 2 molecule of water। इसमें से कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होगा? Al2O3 बचेगा, that is alumina, and water gets vaporized। वाटर आपका क्या हो जाएगा? वेपोराइज्ड हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई कार्बोनेट और हुआ, फॉर एग्जांपल केलामाइट ले लिया हमने, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट ले लिया, इसको भी एयर की एब्सेंस में हमने क्या किया? इट्स गोइंग टू बी हीटेड। ओके, सो इट कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म, और यहां पे भी देखिए इट आल्सो कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म। इस कैल्सिनेशन प्रोसेस, रिमेंबर कैल्सिनेशन प्रोसेस और रोस्टिंग प्रोसेस में हमको करना क्या है? हमको करना है ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना।
कैल्सिनेशन में इन द एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बोथ प्रोसेस आर डन इन अ सेम फर्नेस दैट इज रिवर्बरेटिव फर्नेस। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, स्मेल्टिंग में ore is already exist in their oxide form, so directly it is going to be reduction and उसको हम ore को एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब कैल्सिनेशन में क्या करना था, देखिए यहाँ पे ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में था तो इट कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म, यहाँ पे ये अपने कार्बोनेट फॉर्म में है सो इट इज कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म एंड यहाँ से क्या निकला, CO2 निकल जाएगा। ये होता है। और जो भी पूरा मटेरियल होता है, जो पूरा ओर होता है, इट बिकम पोरस, वो पोरस हो जाता है। ये आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस है। अब हम किसमें मूव करेंगे बताइए, रोस्टिंग में। रोस्टिंग में क्या था, सेम प्रोसेस था, ओर इज गोइंग टू बी हीटेड। बस याद रहे रोस्टिंग प्रोसेस हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सल्फाइड ओर हो, ओके। और रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में एयर की प्रेजेंस भी हम लेते हैं। ओर इज गोइंग टू बी हीटेड below its melting point and below its fusion point and in the presence of air। तो सबसे पहले रोस्टिंग में क्या होता है, इम्प्यूरिटीज होती हैं जो सल्फर, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। रोस्टिंग में याद रखेंगे द इम्प्यूरिटीज ऑफ सल्फर, फास्फोरस एंड आर्सेनिक गोइंग टू बी इट्स आर रिमूव्ड as convert into their volatile form। Volatile means it going to be vaporized। सल्फर, फास्फोरस एंड आर्सेनिक अपने ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे, ये इम्प्यूरिटीज रहेंगी और के साथ, और ये अपने वोलेटाइल फॉर्म में चेंज होके सिस्टम से बाहर चल जाएंगे। कैसे जाएंगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम एयर की प्रेजेंस ले रहे हैं, सो सल्फर रिएक्ट विद O2, इट फॉर्म SO2, इट इज वोलेटाइल एंड रिमूव इट। तो सल्फर की इम्प्यूरिटी चली गई। देन फास्फोरस इज गोइंग टू बी हीटेड, it formed P2O5, sulfur exists in nature as a P4 form, so here we take 2 here and 5, okay। P2O5 is volatile in nature and remove the impurity of phosphorus। Likewise arsenic लिया हमने, इसको भी हमने एयर की प्रेजेंस में हम और को हीट करा रहे हैं, तो ये आर्सेन, these three present as impurity with ore। ये इम्प्यूरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो किस प्रोसेस से दूर हो रही है, रोस्टिंग प्रोसेस से दूर हो रही है, जब हम ओर को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ से आर्सेनिक जो है H2O3 के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 करना है, यहाँ पे हमको 4 करना है, यहाँ पे हमको 3 करना है। तो these 3 are removed by their volatile form। ये अपने volatile form में चेंज हो गए और सिस्टम से बाहर चले गए। अब दूसरी चीज क्या होगी, मॉइस्चर हीट करेंगे तो मॉइस्चर तो वैसे भी रिमूव हो जाएगा, तो मॉइस्चर रिमूव हो गया। These 3 impurities are converted into their volatile oxide। ये impurities रिमूव हो गई, 2 पॉइंट्स हो गए। नंबर 3 इज, अगर हमारे पास कोई सल्फाइड ओर हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइक FeS है, ये सल्फाइड ओर है, इसको हमने O2 की प्रेजेंस में करवाया, then it convert into Fe+SO। तो अगर हमारे पास कोई सल्फाइड ओर होगा, then it convert into their oxide form, okay। तो ये था आपका रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस इज डन। दोनों में डिफरेंस क्या है, कैल्सिनेशन एयर की एब्सेंस में होता है एंड जो रोस्टिंग है वो एयर की प्रेजेंस में होता है। along with these 3 impurities are converted into their volatile form। जो मिक्सचर होता है, जो पूरा ओर होता है, become porous also in this step। इसमें भी आपका जो सिस्टम होता है पूरा, वो कैसा हो जाता है, पोरस हो जाता है। तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इज द इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पोर्टेंट है आपका। अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारे पास पहले से ही क्या हो, जो ओर है वो एग्जिस्ट इन देयर ऑक्साइड फॉर्म, वो पहले से ही ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ओर जो है वो पहले से ही ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो, ओके, देन इट रिएक्ट विद कार्बन, कोक और कोल, कोयला ले लेंगे, उसके साथ हम इसको हीट कराएंगे, इट्स गोइंग टू बी हीटेड। क्या हो जाएगा, ये बिकॉज कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूस कर देगा। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बचा जितना बचा है अगर एग्जिस्ट करेगा ऑक्साइड फॉर्म में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कर देंगे इसको एलिमेंट में और यहाँ पे CO2 निकल जाएगा। तो इट इज अ स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग समझ में आया? स्मेल्टिंग में क्या होता है, कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हमारा जो ओर होता है इज गोइंग टू बी रिडक्शन, वो रिडक्शन में चला जाएगा, ऑक्साइड और रहेगा, एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल जाएंगे। अब क्या करना है इस स्टेप में, स्मेल्टिंग के बाद भी देखा जाता है कि सम गैंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जो कि कंसंट्रेशन जो फर्स्ट स्टेप में हमने जिनको रिमूव करना चाहा था, सेकंड स्टेप भी हो गया, लेकिन चेक किया गया कि अभी भी गैंग पार्टिकल्स इसमें हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए हम यहाँ इसी स्टेप में स्मेल्टिंग प्रोसेस में ही फ्लास्क को ऐड करते हैं। फ्लास्क कुछ ऐसे सुटेबल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो गैंग पार्टिकल को मेल्टिंग फॉर्म में चेंज कर देते हैं, स्लैब में चेंज कर देते हैं। तो फ्लास्क टू टाइप के होते हैं, एसिडिक फ्लास्क एंड बेसिक फ्लास्क। जो एसिडिक फ्लास्क होते हैं वो बेसिक इम्प्यूरिटीज जो होती हैं, जो अब जो बची हैं, जो कंसंट्रेशन स्टेप के बाद भी इम्प्यूरिटीज बची हैं जिनको हम इस स्टेप में रिमूव करेंगे, वो इम्प्यूरिटी एसिडिक इम्प्यूरिटी हो सकती है या बेसिक इन नेचर हो सकती है। तो बेसिक इम्प्यूरिटीज को हम एसिडिक फ्लास्क डालकर रिमूव करेंगे और बेसिक इम्प्यूरिटी एसिडिक इम्प्यूरिटी को हम बेसिक प्लस डाल के रिमूव करेंगे, बेसिक इम्प्यूरिटी को एसिडिक प्लस डाल के रिमूव करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्यूरिटी वी चूज द फ्लास्क, और उसको हम उसमें ये इसी स्टेप जहाँ पे हम होप मिलाएंगे इसी स्टेप में हम उस डाल देंगे जिसको हम फ्लास्क बोल रहे हैं। वो फ्लास्क क्या करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा इम्प्यूरिटीज से और बना लेगा स्लैब। तो बच्चों ये आपका सेकंड प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस में हमने क्या किया, चाहे हमारे पास सल्फाइड ओर हो, चाहे कार्बोनेट ओर हो, चाहे ऑक्साइड ओर हो, हाइड्रोक्साइड ओर हो या हाइड्रेटेड फॉर्म हो, सबसे हमने ओर को कलेक्ट कर मेटल को या एलिमेंट को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जो बची हुई गैंग पार्टिकल्स थी जो फर्स्ट स्टेप में रिमूव नहीं हो पाई, उसको भी हमने फ्लास्क ऐड करके इस पोर्शन में अलग कर लिया। अब हमारे पास मेटल है, लेकिन मेटल अभी भी प्योर नहीं होता है, वो हमको जो इस स्टेप में मिलेगा वो मिलेगा इम्प्योर मेटल। सो लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर एलिमेंट। जो हमको सेकंड स्टेप से एलिमेंट मिलेगा उसको हम प्योर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हमारा थर्ड स्टेप होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल और एलिमेंट्स। थैंक यू। Good morning, students. We will continue our chapter, The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. Okay, let us start the story related with Phatik Chakravarti, who is a teenager of 14 years old, and now, as you are well acquainted, that he was a village lad and full of enjoy, full of free life, but his mother and his brother could not tolerate her such behavior of full of freedom. So one day when his maternal uncle arrived his home, his mother and his maternal uncle decided that for the better future of the Phatik Chakravarti, it will be good to that Phatik Chakravarti should go along with his maternal uncle, as he was living in Kolkata, and he should be educated there with the other three sons of his maternal uncle. As Phatik was full of joy that he was going to settle, he was going to live in such a big city like Kolkata, and there he will get proper education in a big school. So Phatik was every time going to ask his maternal uncle when they were going to start their journey to Kolkata. Finally the day came and Phatik Chakravarti and his maternal uncle reached Kolkata. Now, when they reached Kolkata, जब वो कोलकाता पहुँचे, Phatik made acquaintance of his aunt for the first time. Phatik अपनी मामी से पहली बार अपना acquaintance माने introduction, परिचय प्राप्त कराया, मतलब पहली बार उसका परिचय हुआ. She was by no means pleased
with his unnecessary addition to her family. लेकिन अपने परिवार में एक और बोझ, एक एडिशन माने और अतिरिक्त एक ज़्यादा अनावश्यक जो बर्डन था उसकी फैमिली पे, उससे वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुई। शी फाउंड हर ओन 3 boys quite enough. उसने अपने 3 बेटों को पर्याप्त पाया टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स, कि वो किसी अन्य को, है ना, टेकिंग एनीवन एल्स, किसी अन्य को जो है अपनी फैमिली में मैनेज कर सके। मीन्स टू से शी वॉज सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड एंड विद हर 3 sons, एंड she think that there is no need in his family to invite any other unwelcome guest and to bring a village lad of 14 into their midst, और स्पेशली गांव का लैड मानी लड़का, बॉय, है ना, खास तौर पे गांव का 14 साल का ये लड़का उनके मिडिस्ट मानी मध्य में आए। वॉज टेरिबली अपसेट। ये मैटर तो बिल्कुल ही भयानक रूप से अपसेट करने वाला था, परेशान करने वाला था। Vishamba should really have thought twice before committing such an indiscretion. Indiscretion means the decision which is not decided with the basis of reason. अविवेक पूर्ण व्यवहार जो ज्ञान और विवेक के आधार पर निर्णय न लिया गया। तो विशंबर को फटीक चक्रवर्ती को अपना फैमिली मेंबर बनाने के लिए पहले अपनी पत्नी से राय लेनी चाहिए थी। बिफोर कमिटिंग, है ना, ऐसा करने, कमिट मैंने डन, कमिटिंग मैंने डूइंग, ऐसा करने से, ऐसा अविवेकपूर्ण डिसीजन लेने से पहले अपनी पत्नी से 2 बार पूछना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, द पैसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। जो ये अब इस पैसेज में राइटर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है जो हमारी टीनेजर एज होती है, जो किशोरावस्था होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक और डेलिकेट एज का स्टेप होता है, क्योंकि इस समय जो बच्चा होता है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली जो उसका डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा होता है, और जो अपने उसमें अपनी पर्सनालिटी में वो बहुत ज़्यादा चेंजेस पाता है। इस चेंजेस को अपने उस एटमॉस्फेयर से एडजस्ट करने के लिए उसे बहुत कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर की ज़रूरत होती है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस एज पे वो उसको समझना या वो किसी को समझे ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो वर्ड ह्यूमन अफेयर, इस मानवीय रिश्तों की इस दुनिया में, इन दिस वर्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर, मानवीय अफेयर्स माने कार्य क्रियाकलाप रिश्ते, इन मानवीय क्रियाकलापों की रिश्तों की दुनिया में देयर इज नो वर्स न्यूसेंस, इससे ज़्यादा परेशानी का कोई कारण नहीं होता देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। जब कोई भी बालक, कोई भी पुरुष 14 वर्ष के टीनेजर एज पर पहुंचता है। ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, वो ना तो ऑर्नामेंटल में से, ऑर्नामेंट का मतलब ज्वेलरी होती है, यहाँ पे ऑर्नामेंटल का मतलब होता है कि ना तो वो आनंद की वस्तु होता है, भाई छोटा बच्चा हर कोई बड़े प्यार से खिलाता है, लेकिन टीनेजर 14 ईयर्स के बच्चे को कोई गोद में नहीं खिलाता, तो ना तो वो लवेबल होता है और ना ही यूजफुल, और ना ही इतना मेच्योर होता है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जा सके। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शॉवर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय, छोटा बच्चा समझकर उस पर स्नेह की बौछार, शॉवर अफेक्शन, उस पर स्नेह की बौछार करना भी असंभव होता है। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और हमेशा वो मध्य में आ जाता है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी परेशानी से वो बीच में, हर मैटर के बीच में आ जाता है। इफ़ ही टॉक्स विद द चाइल्डिश लिस्ट, मतलब लिस्ट मैंने बोली, तोतली बोली, लिस्ट, ही इज़ कॉल्ड ए बेबी, अगर वो बच्चों जैसी बात करे, चाइल्डिश बच्चों जैसी बात करे, तो उसको कहते हैं कि बड़े बच्चों की तरह, मतलब वो बड़ा हो गया है और फिर भी बच्चों की तरह बिहेवियर कर रहा है। एंड इफ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे, और अगर वो मेच्योर, ग्रोन अप, वयस्क की, बड़े की तरह अगर रिप्लाई करता है, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट माने ठीठ, है ना, धूर्त, ढीठ टाइप का, तो उसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े मेच्योरिटी की तरह बात कर रहा है, पना दिखा रहा है। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, किसी भी तरह की कोई भी बातचीत जो उसकी तरफ से आती है वो बड़ों को स्वीकार नहीं होती। देन ही इज़ एट अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, इस समय वो अनाकर्षण, मतलब बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी नहीं होती, मेच्योर नहीं होता, ग्रोइंग एज होती है उसकी।
ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स, वो अपने कपड़ों से बड़ा होता जाता है, कपड़े छोटे होते हैं, विथ इंडिसेंट हैंड, बड़े ही हेस्ट माने शीघ्रता से, बड़े ही तेजी से वो मेच्योर होता, बड़ा होता है। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उसकी जो आवाज़ है वो हॉर्स माने कर्कश हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती। ब्रिक्स एंड पैड्स, आवाज़ थोड़ी सी कांपती है, टुकड़े में हो जाती, टूटती है। हिज फेस ग्रोज सडनली, मतलब बहुत कॉन्फिडेंटल वे में वो बात नहीं कर पाता। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, उसका चेहरा भी चूँकि भरा नहीं होता, अट्रैक्टिव नहीं होता, तो वो थोड़ा सा अचानक से उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, अनसाइटली, बहुत अच्छा नहीं दिखता। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्ड, शॉर्ट कमिंग्स माने कमियाँ, शॉर्ट कमिंग बुराइयाँ, कमियाँ। तो बचपन की कमियों को एक्सक्यूज करना, माफ़ करना आसान होता है, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है सहन करना, यहाँ तक कि अनअवॉइडेबल, जिसको अनअवॉइडेबल, जिसको मिटाया ना जा सके, ऐसी गलती, ऐसी कमियाँ 14 साल के लड़के की जो है होती हैं, या लोग नोटिस करते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चा समझ के माफ़ नहीं कर रहे, बड़ा समझ के उसको जज नहीं कर रहे, तो बीच में जो उसकी बातें होती हैं वो बिना डिसीजन के रह जाती हैं, ठीक है। बट द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, और वो बच्चा भी, टीनेजर बच्चा भी अपने सेल्फ कॉन्शियस, अपने आप में बड़ा पेनफुल होता है, मतलब इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट होता है। When he talks with elderly people, he is eitherly unduly forward. अब वो बड़े लोग, एल्डरली वयस्क बड़े लोगों से बात करता है तो बड़े ही असाधारण रूप से उसको हटा दिया जाता है, फॉरवर्ड आगे बढ़ा दिया जाता है कि भाई तुम बड़ों के बीच में मत बैठो, अभी छोटे हो। और एल्स सो अंडरली शाय, और बेचारा असाधारण, अंडरली मैंने असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रूप से वो थोड़ा शाई हो जाता है जब वो उसके अस्तित्व पर, है ना, वेरी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व पर वो कोई क्वेश्चन करता है, जैसा वो अपने अस्तित्व को दिखाना चाहता है और लोग इग्नोर कर देते हैं, तो वो अपने आप में लज्जित महसूस करता है। येट इट इज़ एट दिस वेरी एज, इतनी फ्लैक्चुएटिंग कंडीशन के बावजूद, इसी उम्र पर, व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स अ यंग लैड मोस्ट काफ्स फॉर रिकॉग्निशन, ये जो टीनेजर एज होती है उस पर बच्चा, एक युवा लड़का 14 साल का बच्चा, काश माने लालसा रखता है, डिज़ायर्स, इच्छा करता है कि रिकॉग्निशन, उसकी पहचान हो, लव, उसको स्नेह मिले, प्यार मिले, एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और वो एनीवन, किसी का भी डिवोटेड स्लेव, एक समर्पित गुलाम हो जाता है, वो शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसको कंसीडर करता है, समझता है ना, जो उसके विचारों से कन्विंस होता है, और या वो उसके विचारों से कन्विंस हो जाता है, उससे उसको वो समर्पित गुलाम हो जाता है, मतलब उसको बहुत अपना आइडियल मानने लगता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन बड़े लोग खुलकर अपनी बातचीत नहीं करते, उस पर प्रेम नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उनको ये महसूस होता है दैट वुड बी रिगार्डेड अनड्यू इंडल्जेंसेस, लिप्त होना, कि अगर वो ज़्यादा उसकी तरफ अपनी फेवर दिखाएंगे, शो करेंगे, तो उससे वो बच्चा ये ना समझ ले कि मेरी बड़ी वैल्यू है, तो कहीं बिगड़ ना जाए, तो कहीं वो बिना कारण किसी गलत फहमी में ना आ जाए, इसलिए लोग उसको उसके हाल पे छोड़ना पसंद करते हैं। देयरफॉर बैड फॉर, और ये बात वास्तव में बच्चे के लिए निगेटिव होती, बुरी होती है। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, उसको स्कोल्ड माने फटकारना, है ना, चाइल्डिंग माने डांटना, तो डांटने फटकारने से ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, उसकी हालत एक स्ट्रे, मतलब इधर उधर भटकने घूमने वाले कुत्ते की तरह होती है, दैट लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपना स्वामी खो दिया हो। फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज, 14 साल की उम्र के बच्चे के लिए उसका अपना घर ही सबसे बड़ा स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, किसी अपरिचित व्यक्ति के घर में रहना, विथ स्ट्रेंज पीपल, अपरिचित लोगों के साथ रहना, इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक प्रकार का उसको टॉर्चर, प्रताड़ना देना, उसको पीड़ित करने जैसा होता है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस, जबकि मतलब ये तो टॉर्चर होता है कि वो किसी के अपरिचित के साथ में रहे, और हाइट ऑफ ब्लिस मैंने आशीर्वादमय स्थिति, सबसे अच्छी प्लीजिंग एटमॉस्फेयर कंडीशन उसके लिए क्या होती है? टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, कि वो माँ, बहन या फ्रेंड का जो
So the student, as I was telling you that for a boy of 14 years old, his home is only paradise. मतलब उसका अपना घर ही जो है वो स्वर्ग होता है. लेकिन फटीक को ऐसा जो ब्लेसिंग एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. इट वॉज एंग्विश टू फटीक टू बी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस. अपनी मामी के घर में वो मतलब अनचाहा मेहमान था. डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमेन, इस मेच्योर लेडी यानी में उसकी मामी के द्वारा डिस्पाइज माने उसको नफरत घृणा से देखा जा रहा था. एंड स्लाइटेड और उसको नीचा दिखाया जा रहा था. ऑन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर उसकी मामी उसको नीचा दिखा रही थी. इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, अगर उसकी मामी फटीक से कुछ भी करने के लिए कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वो इतना खुश हो जाता था कि उसको एक चांस मिला है मामी को खुश करने के लिए, तो बहुत ओवरजॉयड होता था. दैट ही वुड ओवरडू, कि वो उस काम को ज़्यादा कर देता था, ओवर कर देता था. एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब वो उसको लेक्चर देती थी कि इतनी मूर्खता करने की ज़रूरत नहीं है, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स. और उसको यानी खुश होने की बजाय उसकी मामी उसको बहुत सारे सबक सिखाने लगती थी, उसको बहुत सारे लेसन देने लगती थी. द क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट हाउस. सो स्टूडेंट, मामी के घर का जो क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर, तंग भरा, घुटन भरा, सफोकेटेड एटमॉस्फेयर था, वो फटीक को ऑप्रेस्ड यानी पीड़ित करने लगा, है ना. फटीक सो मच ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, इतना ज़्यादा उसको घुटन महसूस होने लगी कि ऐसा लगता था कि बड़ी मुश्किल से वो सांस ले पा रहा है. ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली. वो चाहता था कि वो कहीं खुली जगह, जैसे वो गांव में बिल्कुल फ्री एटमॉस्फेयर में एक प्रकृति के खुले स्वच्छंद वातावरण में जाता था, तो ऐसा एटमॉस्फेयर वो चाह रहा था. एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, ताकि वो वहाँ जाकर खुले एटमॉस्फेयर में अपनी सांसों को भर सके, खुली ताजी सांसों को भर सके. मीन्स टू से ही वॉन्ट टू रिफ्रेश हिमसेल्फ, उसको जो घुटन हो रही थी उससे वो मुक्त होना चाहता था. बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो. यू नो कोलकाता इज़ वेरी डेंस सिटी, इसलिए वो कोलकाता चारों तरफ से घरों और दीवारों से घिरा हुआ शहर था, उसको कहीं जगह ऐसी नहीं मिली. ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम. अब एक रात के बाद दूसरी रात, रातों रात वो स्वप्न देखने लगा, मतलब खुली आंखों से स्वप्न देखने लगा, इच्छा करने लगा टू बैक देयर, कि वापस वो अपने गांव में जाकर अपनी वो पुरानी स्वतंत्र जीवन को जी सके. ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडोज वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग. वो याद करता है वो ग्लोरियस मीडो, वो हरे भरे चारागाह जहाँ वो अपनी पूरे लंबे दिन भर पतंग उड़ाया करता था. द ब्रॉड रिवर बैंक, वो चौड़े नदी के किनारे, वेयर ही वुड वॉन्डर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय. आनंद से गाते हुए, खुशी से चिल्लाते हुए पूरे दिन वो नदी के किनारे इंजॉय करता था, घूमता था, टहलता था. नैरो ब्रूक, वो सक्रिय छोटे झरने, वेयर ही ब्रूक गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक. वो छोटे झरने जहाँ वो जब चाहे जा सकता था, डाइव गोते लगा सकता था झरने में, और किसी भी समय, कोई समय की बाउंडेशन नहीं थी, किसी भी समय वो वहाँ पर अपनी स्विमिंग का आनंद ले सकता था. सो स्टूडेंट्स, ये फटीक जो है अब फिर उस आनंद को प्राप्त करना चाहता था, और वो शहरी एटमॉस्फेयर, स्पेशली अपनी मामी के घर का जो घुटन भरा माहौल था, सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर था, उससे वो उठ गया था. आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट video lecture we will continue our chapter. Till then, have a nice day.